Good evening to all. As we know, today is the era of innovation. The innovators are worried and confused how to protect their individual intellectual property. How to protect it is from being copied by others. Normally what happens is intellectual properties have to be protected so that others are not copying it. There are methods of doing it. There's a procedure of doing it by patent, copyrights, trademarks. And most of the innovators are unaware of these procedures. To guide on this topic, we have with us experts from Micrave and Micrave Consultancy. Rumta Group had a long association with Micrave Consultancy. Micrave Consultancy is a promoter of patent, copyright, and trademark and has initiated the propagation of providing the service of filing of IPR at the lowest cost in India. This webinar, which is conducted in association with Micrave team, will help to build and develop intellectual assets for the individuals attending it. Micrave strives to provide the creative minds of our country with well-deserved recognition and valuation of their novel and artistic assets. Today, the speaker of this webinar is Ms. Pooja Menon and Mr. Dhruv Brahmabhat. Mr. Dhruv Brahmabhat is the managing director of Micrave Consultancy and has got 9 years of experience. He has done his BTech in Electronics and Communication and done Diploma in Intellectual Property Rights. Ms. Pooja Menon is the COO of Micrave Consultancy. She has got 8 years of experience, industrial experience, and has done BTech in Information Technology and also done Diploma in Intellectual Property Rights. So, not taking much of the time, I will hand over the webinar to Ms. Pooja Menon so that we can be enlightened with this topic, intellectual property, and we will have a great learning. Please, Ms. Pooja. Hello, sir. Thank you for the introduction. I'll be just sharing my screen so we can start with the presentation. Sure. Hello, everyone. A very warm good evening to all of you. First of all, I really want to thank Rumta Group of Institutions for providing us with this platform. Even during this pandemic, institute like yours have been striving to provide the best education and the best knowledge, and IPR has been a part of education, and Rumta has tried to promote it for a long time, and it's a pleasure to be a part of that. So let's begin. I'll ask everyone to keep your mics mute. If you have any doubt, you can please put it into the chat box. Towards the end of the session, we'll have a detailed Q&A so that we can resolve all your doubts and queries. So let's move on. So basically, in today's lecture, we'll understand what IPR is, how it is related to each and every one of you attending this session, and how you can take a lot of benefit out of it. See, अगर आप एक सेमिनार अटेंड करते हैं, 1 घंटे का टाइम आप अलॉट करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है इसमें से मुझे क्या मिलेगा. टाइम इज इक्वली प्रेशियस, राइट? सो ये सेमिनार के बाद हम वो डिस्कस करेंगे कि हमने जो भी आज ये सेशन में सीखा या समझा, उससे एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, एज ए इंडिविजुअल हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. बेसिकली 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी आप सबको बचपन से सिखाया जाता है कि क्या होता है. अगर मैं पूछूं कि आपके पास क्या है, तो लोग कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, गोल्ड है. ये सब चीजों को आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है. ठीक है. अब हमें पहले से ही बताया जाता है कि आपको आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है. सपोज मैं एक घर खरीदती हूँ, तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट में रजिस्टर करूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी को एंडोर्स करूं उससे पहले वो घर मेरे नाम पे कहा जाए, राइट? अब
इमेजिन कीजिए आपका एक बहुत खूबसूरत सा घर है और आप मुझे कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं और मुझे आपका घर बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं कहती हूँ एक काम करो, इस घर पे अभी जो भी रह रहा है अपना बैग पैक करो और घर से चलते बनो, आज से ये घर मेरा। कैन आई डू दैट? एक्चुअली आई कैन नॉट। आपके पास उस घर के ऑफिशियल दस्तावेज है, यू हैव द प्रॉपर्टी पेपर्स जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि वो घर आपका है। ट्रू? तो आप एक्चुअली डंडा लेके मुझे घर के बाहर भगा सकते हो। हमने पहले से ही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव बिहेव करना सीख लिया है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके आइडियाज, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, इन चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता है। जो चीजें आपके दिमाग में क्रिएट होती है उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब जब आपका घर था तो आपने उसे बहुत अच्छे से गवर्नमेंट में रजिस्टर करके प्रोटेक्ट किया। अब इमेजिन कीजिए, ये एक बहुत डे टू डे लाइफ सिनेरियो है। आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और सडनली एक यूरेका मोमेंट होता है। यू सडनली रियलाइज दैट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन हैज गिवन यू समथिंग इनोवेटिव। आपने रियलाइज किया कि ऐसी चीज तो आज तक किसी ने इन्वेंट ही नहीं की है या किसी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। जब भी आपको एक नया आइडिया आता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? What is the first approach that you take? एक normal human mentality है, I will give a call to my friend or maybe a equally competent colleague of mine, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिस चीज पर मैं वर्क कर रही हूँ और अगर उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंड किया है तो मैं किसी के साथ शेयर करके मुझे कोई मुझे दिलासा दे दे कि वाह क्या आइडिया है बॉस, इट्स सुपर्ब, दिस इज समथिंग यूनिक। जब तक मुझे कोई कोई मुझे नहीं कहता कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई डोंट फील द कॉन्फिडेंस टू गो इनटू द मार्केट। ये ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने जो आइडिया किसी के साथ शेयर किया, आपके कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, इट इज यूनिक, राइट? एवरीवन लव्स फेम। अब इमेजिन कीजिए आपने जो आइडिया डिस्क्लोज किया, नोइंगली अननोइंगली आपके फ्रेंड या कलीग ने डिसाइड किया कि मैं इस वर्क को पब्लिश करता हूं, लेट मी ब्रिंग इट टू द पीपल। ठीक है, तो उन्होंने पेपर में एक बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल लिखा और आपके आइडिया को खुद का बताया। नाउ डू यू हैव एनी राइट्स और प्रूफ टू जस्ट आप बोल सको कि नहीं वो आइडिया आपका था, वो इनोवेशन आपका था या आपको वो रियलाइज हुआ है? डू यू हैव एनी प्रूफ रिगार्डिंग द सेम? हाँ, आप जरूर जाके मीडिया में चिल्ला सकते हो कि उस बंदे ने मेरा आइडिया कॉपी किया है, बट यू विल बी टॉकिंग विदाउट एनी प्रूफ। ऐसे सिनेरियो आपके लाइफ में ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने आपके घर को, आपकी गाड़ी को रजिस्टर कराया है, उसी तरीके से आपके आइडियाज, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, थॉट्स, डिजाइन्स, शायरी, ऐसी हर एक क्रिएटिविटी जो आप अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं, इंटेलेक्ट से क्रिएट करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है आईपीआर। तो आज हम हमारे सेशन में उसको डिटेल में देखेंगे। आईपीआर को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। सो आज हम ये सीखेंगे कि ये 4 कैटेगरीज क्या है, उसके अंदर क्या सब पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजों को वो प्रोटेक्ट करती है, एंड एज अ इंडिविजुअल मैं उसका कैसे बेनिफिट उठा सकती हूँ, व्हाट कैन आई फाइल अंडर आईपीआर, ये हम आज डिटेल में सीखेंगे। आज का पहला टॉपिक वो है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स बहुत सिंपल है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप कॉपीराइट्स किसी की भी आर्टिस्टिक स्किल्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी हम में से सब लोग, या ऑब्वियसली हम एक एकेडमिक फील्ड में है, बट हम सब हमेशा तो पढ़ते नहीं रहेंगे या हमेशा वी वोंट बी अटैच टू एवरी एकेडमिक्स ऑल द टाइम। हम सब कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हैं, जिसे हम यूजुअली हॉबीज या इंटरेस्ट्स कहते हैं, राइट? जैसे कि आप में से कई लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स होंगे, डांसर्स, फोटोग्राफर्स। ये सभी चीजों को गवर्नमेंट आर्टिस्टिक स्किल्स में कंसिडर करती है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए है कॉपीराइट। जब भी मैं कॉपीराइट लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत जेनरिक है कि अगर मैंने कुछ भी आर्टिस्टिक किया, मे बी अ ड्रॉइंग, अ पेंटिंग और अ सॉन्ग, तो मैं उसे पब्लिश कर दूंगी। अभी जो टाइम है, इट्स ऑफ सोशल मीडिया, राइट? अगर मैंने कोई वर्क क्रिएट किया है, क्रिएटिव वर्क, मैं उसे पब्लिश कर दूंगी तो एवरीवन विल कम टू नो अबाउट इट, राइट? एवरीवन विल नो दैट द वर्क इज माइन। अब डिफरेंस समझिए।
जब आप कोई भी वर्क को ऑनलाइन या कहीं पे भी पब्लिश करते हैं, जो टाइम स्टैम्प आपको शो करता है वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन। उस डेट से ये पता नहीं चल रहा कि डेट ऑफ क्रिएशन कब का है एंड ओनर ऑफ क्रिएशन कौन है। मुझे कोई आर्टिकल अच्छा लगा तो मैं शेयर कर दूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आर्टिकल मैंने लिखा है। या डेफिनेटली मैंने वो पब्लिश किया है, बट इट्स नॉट माय क्रिएशन, नीदर माय ओनरशिप। कॉपीराइट आपको टाइम स्टैम्प देता है डेट ऑफ क्रिएशन एंड ओनरशिप की। सो कॉपीराइट वो इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। अब इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा, ओके, यू आर गुड इनटू टेक्निकल राइटिंग, और आपने एक ब्लॉग लिखा और उसके लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर में ब्यूटीफुल मैकेनिकल डिजाइन्स किए हैं। अब जब आपने वो डिजाइन क्रिएट किया और उसे ऑनलाइन पब्लिश किया, इट इज नॉट जस्ट यू और योर फैमिली मेंबर्स जो वो चीजें देख सकती है, राइट? इट्स नॉट जस्ट योर फॉलोअर्स हु कैन सी इट। हर मल्टीनेशनल कंपनी आज के डेट पे ऑनलाइन है। इमेजिन कीजिए आपने कोई जो वर्क ऑनलाइन अपलोड किया है या जो प्रेजेंट कर रहे हो। IBM लव्ड द वर्क, ठीक है, वी ऑल नो द कंपनी IBM, और IBM को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। या समझिए आपने जो वर्क अपलोड किया है वो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत अच्छा लगा एंड दे डिसाइडेड जो आपने इमेज यूज किया है आपके ब्लॉग के लिए उसको खुद की कंपनी के लिए यूज करेंगे। अब बिल गेट्स आपका दोस्त तो लगता नहीं है कि आप फोन उठाओ और लगा लो, अरे सुनना बिल गेट्स, मेरा जो तूने ब्लॉग यूज किया है ना इमेजेस के साथ, उसके लिए तुझे 1 लाख रुपए मेरे खाते में डलवा देना। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। वो आपका फोन का मेल भी रिसीव नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में जो एक डॉक्यूमेंट आपको आपके लिटरेचर वर्क, आपके ब्लॉग्स, सॉफ्टवेयर, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क को या लिटरेचर ड्रामेटिक वर्क्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है लीगली, वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनीथिंग दैट यू हैव डन इज आर्टिस्टिक, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही है, राइट? जो इमेज आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, इट वाज क्लिक्ड बाय अ प्रेस मीडिया फोटोग्राफर। अब ओबामा सर अपने प्रेसिडेंट बनने के कैंपेन्स कर रहे थे, जहां पे एक पोडियम पे उनका ये वाला फोटोग्राफ एक प्रेस मीडिया फोटोग्राफर ने क्लिक किया, ओके। अब वही फोटोग्राफर की एजेंसी ने उस इमेज को ब्यूटीफुली रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया, विच यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, और उस पर उन्होंने कॉपीराइट्स ले लिए। अब फॉर देयर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन डिस्प्ले, उन्होंने उसी इमेज को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू प्रेजेंट किया। इलेक्शन का टाइम था तो ओबामा सर की काउंसिल मेंबर में से किसी ने ऐसे सजेस्ट किया कि हमें नए बैनर्स की जरूरत है, मोर इम्पैक्टफुल बैनर्स, और हमें ओबामा सर का फेस यूज करना चाहिए। ही लुक्स लाइक अ वेरी जेन्युइन पर्सन। ये सजेशन बहुत अच्छा था। जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो इनका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी थी कैंपेन का, जब उनको ये सजेशन दिया गया, सी आलसी लोगों की कमी कहीं पे भी नहीं होती। तो जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने दे वेंट थ्रू ऑनलाइन सर्च, और उनको ये इमेज बहुत ऑसम लगा। उन्होंने वो इमेज को आप खुद के बैनर के लिए यूज किया विद द टाइटल होप, और उन्होंने उस बैनर को ऑल ओवर यूएसए ऑब्वियसली पब्लिश कर दिया। इट वाज ऑल ओवर यूएसए। ये प्रेस मीडिया एजेंसी जिसने ये वर्क को क्रिएट किया था, दे केम टू नो अबाउट इट, ओके। अब when they came to know about it, the people from the press media, one of the representative, they walked into the council office और they started talking. तो उनसे से बोला कि सर मैं मीडिया से हूं और जो आपके नए पोस्टर्स जो लगाए हैं ना आपने, आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेम। सी इलेक्शन टाइम पे ना ये मीडिया वालों के बहुत भाव होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर कैंडिडेट इज पुट फॉर्थ फॉर एनी वर्क ही डज। तो काउंसिल ऑफिस में से एक मेंबर वॉकिंग करता है, अरे बोला कि सर प्लीज लेट्स वॉक इनटू माय कैबिन एंड वी कैन हैव अ टॉक। दे स्टार्टेड डिस्कसिंग, और मीडिया पर्सन ने बात करना शुरू किया कि सर आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट the banners which you have got over all over USA, I want you to remove it right now. जो बंदा बात कर रहा था, he got a bit confused. He's like, what? Do you know where you're standing? Do you know whom you're talking to? पी कर आए हो क्या सुबह सुबह? Are you drunk? The media guy gave him a beautiful smile and he was like, sir, the banner, the photograph which you have used on the banner has been created by my agency.
We have rights over it, and you have used it without your permission, so we will ask you to remove it right now. तो दूसरे सामने तो पॉलिटिशियन था, उसने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, we are not going to remove it, it's kind of our prestige issue, we are not going to remove it. Media guy started talking again. So I said, no problem, I'll just go out into the media and we'll start screaming that the person who wants to be the president of USA is not, agreeing to give us our copyrights. What if tomorrow he becomes a president and takes away our normal human rights? See, topic बहुत छोटा था, it's not a big agenda, but election के time पे ऐसा एक छोटा सा spark भी मीडिया में opposition party के लिए बहुत powerful tool या weapon हो सकता है. So the guy who was discussing understood, वो समझ गया कि अगर इसके साथ लड़ने उतरे that will be a bigger problem. So he was like, look, see, I know you're media and you want to go out and scream because this is something sensational that has happened to you. But we want you to keep your mouth shut till the elections are over. So batao, what will it take, to keep your mouth shut? These guys were paid in huge amount, which was never disclosed, but only because they had copyrights, they were paid, and election के बाद उन्होंने ये news publish किया, but किसी को फर्क नहीं पड़ा, he was already an elected president of USA. So अगर आपके पास copyrights हैं, तो आप किसी भी powerful person को stop कर सकते हो. If you can stop a politician, you can stop any person doing a business. अगर आपके पास copyrights है तो it is that of an important document. ठीक है. अब कुछ funny cases लेते हैं. See, copyrights जो है वो person की privacy को भी मैटर करता है. आप जितने भी पोस्टर्स या बैनर्स देखते हैं जहां पे ये एक्टर एक्ट्रेसेस के इमेजेस यूज किए जाते हैं, कोई भी ब्रांड के साथ, लाइक लैक्मे है, लॉरियल है, जिलेट है, सी दीज आर ब्रांड्स, और उनके साथ जब भी कोई एक्टर या कोई पर्सन का फोटोग्राफ लिंक होता है, वो रिटर्न में परमिशन देते हैं कि यू कैन यूज आवर फेस और आवर फोटोग्राफ्स फॉर दिस. अब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, देयर वाज व्हाट डू यू कॉल अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. ठीक है. अब व्हाट ही डिड वाज, वो एक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सेंटर में जाता है, एक जू में जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में जाता है, एंड वहां पे जाके एक चिंपैंजी के साथ मल्टीपल व्हाट यू कॉल सेल्फी फोटोज क्लिक करता है. सिर्फ वो मंकी के अलग अलग एक्सप्रेशन, द मंकी वाज वेरी एंटरटेनिंग, वो अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा था, एंड द फोटोग्राफर स्टार्टेड क्लिकिंग. आफ्टर ही हैड क्लिक्ड दोज इमेजेस, उसने बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले एंड ही स्टार्टेड सेलिंग इट ऑफ. ये बहुत एक सेंसेशनल न्यूज बन गया था, अ मंकी विद एक्सप्रेशंस करके. अब आई पीटा, PETA, दे आर एनिमल प्रोटेक्शन वाले होते हैं ये, वी ऑल नो अबाउट इट. अब इंडिया में ना ये लोग शायद इतने एक्टिव नहीं होते, या फिर लोग इनकी ज्यादा सुनते नहीं है. जहां पे अगर कई बार ऐसा होता है कि जू में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि इस जानवर को खिलाना मना है, उसी जानवर को लोग खिलाने जाते हैं इंडिया में कि देखते ना खाता है कि नहीं. We are actually still in a very bad culture when it comes to following rules. But हम जब बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं, they are very strict about it. अब ये एपिसोड हुआ इंडोनेशिया में. अब यहाँ पे पीटा वालों ने इंटरफेयर किया. They were like, this guy who entered into a wildlife reserve and without the permission he clicked the photograph of the monkey. अब उसने monkey की privacy को infringe किया and earned money out of it. वाइल्ड लाइफ रिजर्व में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. यू कैन नॉट एक्चुअली यू आर अलाउड टू लुक, यू आर नॉट अलाउड टू हार्म द एनिमल्स, और उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते इन एनी वे. सो ये आदमी, दिस गाय वाज बॉट इनटू द कोर्ट एंड दे फॉट अ केस अगेंस्ट इट. दिस गाय लॉस्ट एंड ही वाज गिवन अ वर्डिक्ट दैट आपकी जितनी भी इनकम हुई है, यू अर्न द प्रॉफिट आउट ऑफ द इमेज, यू हैव टू पे 25% टू द वाइल्ड लाइफ रिजर्व. But it was an experience, and क्योंकि सारे photographs के first rights इस monkey के पास थे, because there was nothing written, कि उसकी कोई permission नहीं थी. So the guy had to pay, and he happily paid off 25% of his profit to the wildlife reserve for all the future, managements. So ऐसी चीज, it's a funny incident which has happened. India में भी धीरे-धीरे इसके direction में लोग work कर रहे हैं, but still we are very much free. ठीक है.
इंफ्रिंजमेंट की बात कर रहे हैं बिकॉज इन द कमिंग फ्यू इयर्स यू विल बी स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, वर्किंग विद मल्टीपल एमएनसी कंपनी, तो आपको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के बारे में जानना जरूरी है. सी, कोई हमारे वर्क को कॉपी करे तो हम केस उठा सकते हैं, बट व्हाट इफ वी मिस्टेकनली यूजेस समबडी एल्सेस वर्क, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस वी कैन फेस. सी, अगर आप इंडिया में हैं और अगर आपने किसी के वर्क को कॉपी किया है, एज पर आईपीआर रूल जो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इफ यू आर अनेबल टू पे दैट पर्सन, आपको 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, 7 years of imprisonment. So you understand how serious of a crime is using anybody's copyrighted work. So this is one episode which occurred. इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस एक्सटेंट तक किसी का वर्क यूज कर सकते हो. सो हम सब टाटा कंसल्टेंसी को जानते हैं, राइट? वी ऑल नो अबाउट द कंपनी. अब हुआ ऐसा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एपिक सिस्टम्स जो यूएसए में सॉफ्टवेयर डेवलप करती है. इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी इन यूएसए. अब हुआ क्या, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था फॉर द हॉस्पिटल चेन्स इन यूएसए. ओके, अब आफ्टर द सॉफ्टवेयर्स वेयर fed into their databases of the hospital, वो एक बार इंस्टॉल हो गया हॉस्पिटल्स में. उसके बाद they hired TCS from India to do all the backhand work like maintenance and software update and all those things. काफी कंपनीज ऐसा करती है. Once the main work is done, they do hire third party company to take maintain and keep the things working. अब जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी को इनवाइट किया जाता है टू वर्क ऑन देयर सॉफ्टवेयर और द मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट, हमेशा एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट हर कंपनी साइन करती है. नाउ व्हाट डज दैट कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट से? इट स्टेट्स दैट you will be allowed access to our data, our confidential algorithms, softwares and our client databases. You are allowed to work on it जितनी आपकी requirement है, like for the maintenance purposes. अगर आपने यूज, मिसयूज या वायलेट किया या ब्रीच किया कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को, तो यू विल बी लायबल टू मॉनिटरी आपको लॉस हो सकता है. अगर आपने, यू विल बी लायबल टू मॉनिटरी कंपनसेशंस. ये कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता है? यूजुअली द मैनेजर लेवल पीपल, ठीक है, द बिजनेस मैनेजर या जो भी उनके टेक्निकल मैनेजर है वो साइन करते हैं. अब वर्क करने कौन आता है? यूजुअली द एम्प्लॉई, ठीक है, जो सीनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर होगा जो वर्क करने आता है. हुआ ऐसा कि the people who came to work on the software for the maintenance purposes were not informed of the confidentiality agreement. कई बार नहीं होता. आप I have worked with MNCs and even I was never told about such confidentiality agreement. So होता क्या है, when the guy came to work on the software, he loved the software. उसको मजा आया, उसने लगा कि this is so good, ठीक है. So when he came back to India, उसने आके TCS में ये डिक्लेयर किया कि let's develop software for Indian hospital chains, and they developed something related to the same software and launched it under the name MedMantra. अब Epic Systems came to know about it क्योंकि उनके बीच में confidentiality agreement था and it's a violation of rights. उन्होंने TCS को $940 million का क्लेम किया, infringement claim for stealing their healthcare software. See, agreement sign किसके बीच में हुआ? Employees के बीच में. Even if the people at the business manager level are employees, right? Software develop employees ने किया, sell employees ने किया, install employees ने किया. But at the end, the people who were liable to compensate for all the problem was TCS. So इससे आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचिंग फैकल्टी हैं, तो आपके लिए कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, एक कॉपी, अगर सपोज किसी का डेटा ऑनलाइन है और आपने उसे आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया या फिर सिर्फ किसी को सिखाने के लिए यूज किया, इट इज ओके, इट्स नॉट अ बिग वायलेशन. बट एज सून एज आप उसमें से मनी या फेम अर्न करते हैं, आप उस सॉफ्टवेयर को सेल करना चाहते हैं या ऑनलाइन गूगल एप्स में डालते हैं या iOS एप्लीकेशंस में डालते हैं, then it is a violation of rights. ऐसे केस में आपके अगेंस्ट कोई भी केस उठा सकता है. And if you decide to work with an MNC or develop or start your own company and develop softwares, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी और का सॉफ्टवेयर कोड भी अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी पूरी कंपनी को कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में लायबल कर देते हैं. So you have to be very careful that जैसे ही आप एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग हो रहा है, वहां पे आप किसी और का डेटा उनके परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकते.
इट्स अ ह्यूज वायलेशन। ठीक है, आई होप कॉपीराइट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, सो विल बी रिजॉल्विंग इट टुवर्ड्स द एंड, बट हमने कुछ क्विक Q&A डिजाइन किया है जिससे आपके मैक्सिमम डाउट्स हम सॉल्व कर सके as we are moving on. So the first question जो हमारा, ये वो क्वेश्चन है जो हमें यूजुअली ऑडियंस से आता है, so we have just summarized it ताकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको और भी डाउट्स आए। ठीक है ना? So the first question was, what does copyright actually protect? See, कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि यू आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट बुक विच हैज सेम रिलेटेड कंटेंट। जैसे आपके इंजीनियरिंग में भी ऐसा होता होगा कि आपका मेन टेक्स्ट बुक होता है और एक रेफरेंस बुक होता है, राइट? रेफरेंस बुक में भी सेम टॉपिक्स है, बट जो भी राइटर है उसने एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया है, एंड दोनों बुक्स कॉपीराइटेड होती है। इट्स बिकॉज कॉपीराइट एक्सप्रेशन ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करता है, ना कि आइडिया। आपके आइडिया को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, आपने किस तरीके से वो वर्क को रिप्रेजेंट किया है, क्या वर्ड्स यूज किए हैं, किस कौन से कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया है, उस पे प्रोटेक्शन मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल, काफी पेंटर्स हैं जो सनसेट पेंट करते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि दूसरा कोई पेंटर सनसेट पेंट नहीं कर सकता। नो, इट इज अबाउट द कंसेप्ट। अगर वो कंसेप्ट उसने जिस तरीके से पेंट किया है, स्ट्रोक्स दिए हैं, उस चीज को कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, necessary to register a work to claim copyright? See, अगर आपने कोई वर्क पब्लिश किया है तो आप लोगों को जरूर बता सकते हैं कि वो वर्क आपका है, बट इफ यू वांट टू फाइट अ लीगल केस, अगर आप लीगली प्रूव करना चाहते हैं विद सम डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके पास कॉपीराइट होना जरूरी है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कॉपीराइट फाइलिंग से आपकी डेट ऑफ ओनरशिप एंड डेट एंड ओनरशिप दोनों प्रूव होती है, डेट ऑफ क्रिएशन एंड ओनरशिप दोनों प्रूव होती है। ठीक है, Where can I file application for registration of copyright? कहाँ पे आप फाइल करते हैं? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बहुत फ्लेक्सिबली ऑनलाइन कर दिया है। देयर इज अ गवर्नमेंट साइट दैट इज copyright.gov.in। ये पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है एंड इट हैपेंस। इंडिया में सिर्फ एक ही कॉपीराइट ऑफिस है, दैट इज इन दिल्ली। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है अरे वो बाजू वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपन जाके फाइल करके आते हैं, या कोई लॉयर बोलता है मैं जा रहा हूँ दिल्ली फाइल करने, इट इज ऑल रॉन्ग। इंडिया में एक ही ऑफिस है एंड उसकी जो फर्स्ट सबमिशन है दैट इज ऑनलाइन, यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक है, कैन आई माइसेल्फ फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट? यस, आपको एक कॉपीराइट फाइल करने के लिए किसी भी लॉयर या एजेंट की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइल इट योरसेल्फ, बट just to avoid any error or mistake, that is where the agent and attorney comes into picture. A copyright registration, it happens within a month or 2 months में grant हो सकता है, but अगर आपके पास कोई if everything is correct in your document, within 2 months you can actually have the certificate of copyright. इसलिए लोग usually agents या attorneys को hire करते हैं। ठीक है, Whether unpublished works are registered? Yes, अगर आप copyright फाइल कर रहे हैं, there are two benefits. आपका वर्क अगर अनपब्लिश्ड है तो डेफिनेटली यू कैन फाइल फॉर अ कॉपीराइट, एंड अगर आपका वर्क पब्लिश्ड है, सॉरी अनपब्लिश्ड है तो आप कॉपीराइट फाइल ही कर सकते हैं, बट अगर आपका वर्क व्हाट डू यू कॉल पब्लिश्ड है तो भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम स्टैम्प है या कोई प्रूफ है कि ओके दिस योर वर्क वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सो एंड सो, जैसे लोग पेपर पब्लिश करते हैं, अगर आपकी खुद की पर्सनल साइट है, अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, वहां पे आपके वर्क को आपने पब्लिश किया है, उसे भी एज प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, बट प्लीज सी टू इट कि अनपब्लिश्ड वर्क को ही आप पहले फाइल करें। ठीक है, so I hope copyright clear है। if you have any doubt we'll be discussing towards the end of this session। ठीक है, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को आराम से एड्रेस कर सके। we'll be having our expert Dhruv Brahmbhatt who will be joining us towards the end of the session. He's the managing director of Mycrave Consultancy. He'll be joining us ताकि आपके हर एक डाउट सर भी सॉल्व कर सके। ठीक है, so the next topic that we'll be discussing is trademark। अब जैसे कॉपीराइट आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज आप एक प्रोडक्ट मार्केट में बाय करने जाते हैं, ठीक है, तो आप कैसे पहचानते हैं कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या दिस इज गुड या यही कंपनी का प्रोडक्ट आपको बाय करना है?
यूजुअली यूजिंग इट्स नेम, लोगो, सिंबल, टैगलाइंस, ये चीजें एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्राइव करके जा रही हूँ एंड सडनली रास्ते मुझे भूख लग रही है एंड आई फाइंड अ कैपिटल येलो M. मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगी कि इट्स मैकडोनल्ड्स, राइट? सो मैकडोनल्ड्स ने उनका जो M का सिंबल है वो उन्होंने ट्रेडमार्क कराया है ताकि वो एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सके. एंड क्योंकि इट्स अ ह्यूज फूड चेन, मैं मुझे इस पे ट्रस्ट है. लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग आई प्रेफर टू ईट एट गुड फूड चेन, राइट? अब इमेजिन कीजिए मैंने एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहना है, उसमें एक छोटा सा टिक मार्क है. आई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि वो नाइकी है, राइट? सो हर कंपनी ने अपने ब्रांड को, अपने सिंबल्स को, टैगलाइंस को, इस चीजों को ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट किया हुआ है. इसलिए आप कई बार TM या R का छोटा सा सिंबल देखेंगे, राइट? इट मींस द ब्रांड नेम इज प्रोटेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट और उस ब्रांड नेम को या सिंबल को कोई और यूज या मिसयूज नहीं कर सकता. और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ट्रेडमार्क होती है जैसे कि साउंड, स्मेल, डायलॉग, वॉइस, 3 डायमेंशनल डिजाइन, ये भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करती है. समझिए क्यों. सपोज आई एम विजिटिंग द मार्केट, मैं सिर्फ ब्रांड नेम नहीं देखूंगी, ठीक है? इफ आई वांट टू बाय अ परफ्यूम तो मैं सिर्फ ब्रांड नेम नहीं देखूंगी, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी कि हाउ गुड द परफ्यूम स्मेल्स, राइट? सो हर lovely. Sorry, we just lost power in the office. Is my screen still visible, sir? Yes, your screen is still visible. You can continue, Pooja. ओके. सो जैसे हम एक्सप्लेन कर रही थी कि इन केस अगर मैं एक व्हाट डू यू कॉल, अगर मैं एक परफ्यूम बाय करने जाती हूँ तो मैं उसका स्मेल चेक करूंगी. Every perfume manufacturing company will first, trademark its smell such that no competitor company can actually launch the same smell in the market. Imagine कीजिए आप परफ्यूम बाय करने जाते हैं और सेम स्मेल के 2 परफ्यूम. It will be very difficult to understand कि कौन सा ब्रांड ऑथेंटिक है और कौन सा स्मेल नहीं है. सो हर कंपनी अपने स्मेल को ट्रेडमार्क फाइल करती है, ठीक है? दूसरी बात करें डायलॉग या वॉइस की. हम जब छोटे थे तो तब हम कार्टून देखते थे, राइट? उसमें टॉम एंड जेरी वाज वन ऑफ माय फेवरेट. जब भी वो टॉम एंड जेरी स्टार्ट होता था उसके बिगिनिंग में एक लायन के रोरिंग साउंड आता था, राइट? हम सबको पता है दैट साउंड इज स्टिल सो नॉस्टैल्जिक. वो आज भी किसी मूवी जैसे वार्नर ब्रोस की मूवी से पहले अगर वो प्ले होता है तो मुझे सबसे पहले टॉम एंड जेरी स्ट्राइक करेगा. सो वॉल्ट डिज्नी का इट इज अ ट्रेडमार्क ऑफ वॉल्ट डिज्नी. कई बार आपने, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, वो फोटोग्राफ के बाजू में ट्रेडमार्क ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क. आप किसी चीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद ट्रेडमार्क. आप जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है. अब समझिए, सपोज आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर कार्टून कैरेक्टर है तो इट्स एन आर्टिस्टिक वर्क, राइट? सो मैं उसे ट्रेडमार्क क्यों फाइल करूंगी? मुझे एक्चुअली कॉपीराइट फाइल करना चाहिए, राइट? इफ यू हैड दैट क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान दे रहे हैं. अब समझिए, सपोज आप कॉपीराइट फाइल, अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप कॉपीराइट ही फाइल करेंगे. बट as soon as the character starts getting linked to a product, समझिए आप हम सबके घर पे कोई ना कोई टॉडलर होगा. लाइक आई हैव अ यंग कजिन. अब अभी उसका रिसेंटली बर्थडे गया, अगर उसको पूछना है कि क्या चाहिए बर्थडे पे, तो he'll be like मुझे छोटा भीम वाले टी शर्ट्स चाहिए या फिर मुझे छोटा भीम वाले साइकिल चाहिए. आई हैव अ स्वीट कजिन, शी इज ऑलवेज लाइक मुझे मिनियन वाले वाटर बॉटल्स चाहिए. सो व्हाट हैपेंड हियर इज, जो कार्टून कैरेक्टर है इट स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड ऑन मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स. वो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनने लगे. सो एवरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर व्हेनेवर दे डिसाइड
To print the cartoon character onto a product, they have to pay a royalty amount to the person who created the character. जैसे कि अगर सपोज छोटा भीम की बात करें, इट्स एन इंडियन कैरेक्टर, एक इंडियन पर्सन ने उस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, उसे काफी अच्छी रॉयल्टी जाती है जस्ट टू गेट हिज कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन डिफरेंट बॉटल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इसके लिए कैरेक्टर मर्चेंडाइजिंग लॉ प्ले करता है एक रोल. अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इफ यू वांट टू बाय अ नॉर्मल टी शर्ट इट माइट कॉस्ट यू 300-500 डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड. बट सपोज आप ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट बाय करते हैं, जैसे हम में से कई लोग डीसी या मार्वल के फैन होंगे. अगर आप कोई ऑफिशियल स्टोर में जाके बैटमैन वाले, सुपरमैन वाले या आयरन मैन वाले टी शर्ट्स बाय करोगे, the cost will suddenly jump from 300-400 to 1000 or 2000 या 3000. आपने नोटिस किया होगा, इट इज बिकॉज ऑफ कैरेक्टर मर्चेंडाइजिंग लॉ. जब भी आप एक प्रोडक्ट बाय करते हो, इट इज नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, along with that उसके साथ एक रॉयल्टी कॉस्ट अटैच्ड है दैट इज पेड बाय यू टू द एक्चुअल पर्सन हु हैज क्रिएटेड. मैन्युफैक्चरर अपने पॉकेट से पे करेगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू paid from his own pocket for a long time, right? तो वो क्या करता है, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके साथ वो रॉयल्टी अमाउंट अटैच करता है. दैट इज व्हाई दीज मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, बिकॉज देयर इज अ रॉयल्टी अमाउंट व्हिच इज पेड टू दीज कंपनीज. एंड वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग कंपनी इज डिज्नी. वी ऑल नो दैट, राइट? These are few of our Indian famous trademarks. जैसे अमिताभ बच्चन जी की आवाज. आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज कोई भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर आप जैसे ये काफी प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग करने आते हैं ऑन स्क्रीन या फिर काफी अच्छे कॉज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनकी आवाज जहां पे भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म है वहां पे आप उनकी आवाज यूज नहीं कर सकते. डेफिनेटली कॉमेडियंस की बात अलग है, बट आप कोई भी सेलिंग में नहीं यूज कर सकते. सिमिलरली सनी देओल की आवाज वो भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है. अब कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जैसे कि क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स, वो खुद का नाम ट्रेडमार्क कराते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, वो नाम ट्रेडमार्क्ड है. SRK वो नाम ट्रेडमार्क्ड है. नमो ऑफ नरेंद्र मोदी वो ट्रेडमार्क है. अब मुझे ये बताओ, क्या मैं मेरा नाम ट्रेडमार्क कर सकती हूँ? लाइक पूजा मेनन, क्या मैं ट्रेडमार्क करा सकती हूँ? मुझ में और इन लोगों में क्या फर्क है? मुझे पता है काफी लोगों ने म्यूट में बोला होगा आप फेमस थोड़ी हो. वेरी ट्रू. अब समझिए, अगर सपोज सचिन तेंदुलकर एक आरओ प्यूरिफायर का आरओ प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी लॉन्च करता है, ठीक है? अब अगर सचिन तेंदुलकर आपके घर आके ऐसा बोलते हैं कि ये आरओ वाटर प्यूरिफायर आप बाय कीजिए, इट इज ग्रेट फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो सचिन है, लोग ज्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, बिकॉज पीपल ट्रस्ट हिम. पीपल ट्रस्ट कि अगर वो ये बना रहा है दैट मींस इट्स गुड, वो एंडोर्स करा है तो इट इज गुड. अब इमेजिन कीजिए अगर मैं आपके घर आके बोलती हूँ कि सर दिस आरओ वाटर प्यूरिफायर इज गुड, प्लीज बाय, तो शायद आप दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दो. ट्रू, क्योंकि आपको मैं सेल्स वुमन लगूंगी, यार इंटरेस्ट नहीं है, आगे निकलो, राइट? सो ये लोग ऑलरेडी एक ब्रांड है, इनकी एक ब्रांड वैल्यू है, एक इंडिविजुअलिटी है और लोग इन्हें पहचानते हैं. सो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जिन लोगों की खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी है, जो जिनके नाम से लोग वाकिफ है, उनको खुद का नाम ट्रेडमार्क कराने की परमिशन है, ताकि कोई उनका नाम यूज या मिसयूज ना कर सके. इमेजिन करो कल को मैंने एक पान का गल्ला डाल दिया और मैं सेल करने लगी SRK तंबाकू, और फिर टैगलाइन भी आएगा SRK स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इमेजिन कीजिए जो सेलिब्रिटीज बहुत अच्छी कॉजेस को सपोर्ट करते हैं या इज फेमस, उनका नाम मुझे बदनाम करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा. सो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट उनका नाम ट्रेडमार्क करने की परमिशन देती है, ठीक है? बट एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं एक पर्सन हूं और मुझे कुछ ट्रेडमार्क कराना है, तो मैं क्या करा सकती हूँ? मैं अगर सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है और उसको एक नाम दिया है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल वी आर ग्रुप ऑफ 3 और मैंने एक इनिशियल्स दिए, तो वो इनिशियल्स को मैं उस प्रोडक्ट के साथ ट्रेडमार्क करा सकती हूँ. मैंने एक कंपनी ओपन की तो कंपनी का नाम ट्रेडमार्क करा सकती हूँ. मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, वो एप्लीकेशन का नाम ट्रेडमार्क करा सकती हूँ. मैंने एक बुक लिखी तो बुक का नाम मैं ट्रेडमार्क फाइल कर सकती हूँ. तो इस तरीके से एज अ इंडिविजुअल मैं कोई भी मेरे प्रोडक्ट को दी हुई चीज, मतलब मेरी प्रोडक्ट को दिया हुआ नाम मैं ट्रेडमार्क फाइल कर सकती हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ की जरूरत नहीं है. मैं मेरे खुद के घर के एड्रेस
एंड मेरे खुद के नाम से मैं ट्रेडमार्क फाइल कर सकती हूँ एंड गवर्नमेंट वोंट आस्क यू फॉर अ कंपनी रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट आपको 10 साल की परमिशन देती है, आप उसे यूज विद इन 10 इयर्स आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ट्रेडमार्क भी आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, और एक्सपर्ट्स आर कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सेम, ठीक है। सो अब हमने दो टॉपिक कवर किया। फर्स्ट था कॉपीराइट, जो आपकी आर्टिस्टिक वर्क को क्रिएट करता है। कॉपीराइट कराने के लिए मुझे कोई भी वर्क के वर्क के लिए लॉजिक होना जरूरी नहीं है। इफ आई वांटेड टू पेंट सन पिंक तो मैं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स एन आर्टिस्ट व्यू, ठीक है। तो कॉपीराइट कराने के लिए मेरे ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लाई नहीं होता। बट जब हम पेटेंट की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर मेरे पास एक आइडिया है, कंसेप्ट है, मेथड है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, तो मैं उसके अगेंस्ट पेटेंट फाइल करूंगी। पर पेटेंट फाइल करते टाइम गवर्नमेंट मुझसे दो क्वेश्चन पूछेगी। एक, why do you want to what is the importance of the idea, why do you want to file a patent? तो आपको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि why is it important, and second question is that how are you going to do it? गवर्नमेंट आपसे हाउ का क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप ऐसे बोलते हो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे मैं लोगों को गायब कर सकता हूं, तो गवर्नमेंट पूछेगी कि आपको गायब क्यों करना है। you can give your reasons, हम सबके अपने reasons होता है किसी को गायब करने के लिए, बट गवर्नमेंट पूछेगी how you are going to do it। तो आपके पास एक टेक्निकल लॉजिकल आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने गायब कर दिया, बट हाउ, if you don't have an answer it cannot be filed for a patent। so patent is completely about logic, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी चीज है जिसका आपको पेटेंट फाइल करना है, आपके पास हाउ इट इज गोइंग, एटलीस्ट थियोरेटिकल डेटा होना जरूरी है। अब क्योंकि हम पेटेंट के बारे में आगे सीखेंगे, एक थ्योरी जो बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, उसको मैं क्लियर कर दूं। पेटेंट फाइल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप होना जरूरी नहीं है। बहुत लोग डराते हैं मार्केट में कि प्रोटोटाइप होना जरूरी है, गवर्नमेंट आके चेक करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीरियसली, यू जस्ट नीड अ थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट, या फिर आप जो भी स्केच कर रहे हैं वो ऑन पेपर होना जरूरी है, ठीक है। देन यू कैन फाइल फॉर अ पेटेंट। प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप होना जरूरी नहीं है। सो पेटेंट को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सॉरी एक्चुअली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड जीनोमिकली इंजीनियर्ड प्लांट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब क्योंकि हम इंजीनियरिंग सेक्टर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, या हमें अभी के लिए बायोटेक्नोलॉजी को जो प्लांट बेस्ड होता है, जो सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वर्क करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखेंगे। हम यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट पे फोकस करेंगे। अब दोनों का डिफरेंस समझिए। सपोज मेरे पास एक मग है, ठीक है। यूजुअली मैं ग्लास मग को किसके लिए यूज करती हूँ, अगर मुझे कोई हॉट या कोल्ड बेवरेज पीना है तो मैं एक ग्लास का इस्तेमाल करूंगी। अब मल्टीपल कंपनीज ऐसी है जो डिफरेंट शेप्स साइजेस में मग्स बनाती है। हर कंपनी जब भी सिर्फ एक प्रोडक्ट का शेप चेंज करती है, यूटिलाइजेशन नहीं, सिर्फ शेप चेंज करती है, तो वो डिजाइन पेटेंट अप्लाई करती है। क्योंकि ना ही उसका वर्किंग बदला है, ना ही उसका यूटिलाइजेशन बदला है, सिर्फ उसका लुक एंड फील बदलता है, तो मैं उसके अगेंस्ट डिजाइन पेटेंट फाइल करूंगी। बट सपोज करो आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, अब रोज सुबह उठ के ना कॉफी बनाना मुझे कंटाला आता है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, इफ देयर इज अ वे दैट ऑटोमेटिकली कॉफी बन जाए, सो आई मेक अ सेल्फ हीटिंग स्टिरिंग मग। अब उसमें क्या करना है कि मुझे एक ग्लास दूध लेना है, मग में 1 चम्मच शुगर और कॉफी पाउडर डाल देना है। अब मैं प्रोग्राम कर सकती हूँ कि सपोज लाइक आई जस्ट मैंने वो कॉफी डाला और मैंने उसको रख दिया। नाउ व्हाट द थिंग कैन डू इज, वो नीचे एक प्लेट है जो ऑटोमेटिकली मेरे मग को हीट करेगा, एंड एक स्टिरर सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट आपने डाला है उसको स्टिर करेगा और एकदम सीसीडी जैसा या फिर व्हिचएवर प्लेस में बरिस्ता जैसा ऑसम कॉफी मुझे प्रोवाइड करेगा। सिंपल। सो जब मैंने एक ग्लास को प्रॉपर्टीज दी, फीचर्स दिया, उसके प्रेजेंट वर्किंग को एनहांस किया, तो मैं उस पर यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई करूंगी। क्योंकि यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई करने के लिए मेरे पास उसका वर्किंग, कंपोनेंट्स, मेथड, प्रिंसिपल, हर एक चीज होना जरूरी है। थियोरेटिकली, अभी भी थियोरेटिकली मुझे उसको लाइव प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बट डिजाइन पेटेंट इज सिंपलेस्ट, मुझे सिर्फ जो भी स्ट्रक्चर है उसके 7 व्यूज होने चाहिए, क्योंकि दिस इज हाउ माय प्रोडक्ट विल लुक फ्रॉम ऑल इट्स एंगल। तो मैं सिर्फ
उस पर डिजाइन पेटेंट फाइल कर सकती हूँ। इट इज दैट सिंपल। तो आई होप आपको यूटिलिटी पेटेंट और डिजाइन पेटेंट का डिफरेंस समझ में आया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, आई थिंक और अंडर, हम सब पानी बॉटल से पीते हैं, राइट? अब बॉटल का काम क्या है? इट्स अ वाटर, इट्स अ कंटेनर जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं एंड यू कैन मूव अराउंड विदाउट स्पिलिंग द वाटर। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जो वाटर बॉटल्स बनाती है, लाइक बिस्लरी, किनले, हिमालय, बहुत सारी कंपनीज जो बॉटल्स बनाती है। उनका सबका बॉटल का एक स्ट्रक्चर है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बिस्लरी का बॉटल आप दूर से भी पहचान लोगे कि वो बिस्लरी है, या किनले का बॉटल आप दूर से पहचान लोगे वो किनले है, राइट? हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक बॉटल को स्ट्रक्चर देती है और डिजाइन पेटेंट फाइल करती है ताकि आप उसे दूर से पहचान सको और उस कंपनी का वो प्रोप्राइटरी डिजाइन होगा। बट देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड मिल्टन। हम सब बचपन से वो बॉटल्स यूज करते आ रहे हैं, राइट? अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बॉटल्स हैं जिसमें आप पानी जिस टेम्परेचर में पोर इन करोगे 24 आवर्स तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बॉटल को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जिससे पानी हॉट हो तो हॉट रहेगा और कोल्ड हो तो कोल्ड रहेगा विदाउट एनी टेम्परेचर डिफरेंस। जब मिल्टन ने बॉटल्स को प्रॉपर्टी प्रोवाइड की तो उन्होंने उस पर यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा उसके कंपोनेंट्स क्या है, वर्किंग क्या है, कितने लेयर हैं, कितनी देर तक रिटेन करेगा, ऑल दोस थिंग्स हैड टू बी अप्लाइड, डिस्क्राइब्ड, तो उसे यूटिलिटी पेटेंट के अंडर अप्लाई किया गया। ठीक है, सो आई होप यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट क्लियर है। दिस विल हेल्प यू जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट टेकअप करेंगे तो इससे आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आप कैसे आपके आइडिया को यूटिलिटी या डिजाइन के अंडर बाइफरकेट कर सकोगे। ठीक है, अब जब भी लोग पेटेंट फाइल कराने आते हैं तो उनका एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम क्या क्या चीजों का पेटेंट करा सकते हैं। ये काफी लोगों को एक क्वेश्चन होता है, राइट? अब एज पर इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो एज पर सेक्शन 3, पूरे गवर्नमेंट के सेक्शन 3 के अंडर ये चीजें इंडिया में या पेटेंट नहीं हो सकती। लेट्स अंडरस्टैंड, बिफोर वी अंडरस्टैंड नॉन पेटेंटेबिलिटी, समझिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होता है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आपने ढूंढा, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। सो समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसे डिस्कवरी कहते हैं। एंड डिस्कवरीज कैन नॉट बी पेटेंटेड, नॉट जस्ट इन इंडिया, एनीवेयर। कोई भी डिस्कवरी को पेटेंट नहीं किया जा सकता। बट इन्वेंशन क्या है, आपने उसे स्क्रैच से बनाया, you are the creator, you played God in creating that product, तो उससे आप invention कहेंगे and only inventions can be patented। ठीक है, अब as per government law, scientific principles of formulation of abstract theory, discovery of scientific principle, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हम सबको पता है कि न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, बट न्यूटन ने इन्वेंट नहीं किया है। न्यूटन ने ये सिर्फ हम सबको बताया कि देयर इज सम फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी जो हम सबको अर्थ की तरफ पुल करके रख रहा है। इसीलिए न्यूटन अपना नाम दे सकता है उसको, पर ऐसा नहीं बोल सकता अरे ग्रेविटी आज से मेरा, क्योंकि मैंने ढूंढा है तो ग्रेविटी आज से मेरा, आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डिस्कवरी। लोग खुद का नाम दे सकते हैं बट दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट समबडी एल्स फ्रॉम यूजिंग इट। इन्वेंशन ऑन द अदर पार्ट, people can restrict others from using or misusing it for a predefined period of time। ठीक है, इन्वेंशंस भी ह्यूमन बेनिफिट के लिए होता है, बट जिन्होंने R&D किया है, वर्क किया है, उनको कुछ टाइम के लिए उसकी रॉयल्टी दी जाती है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे मैंने कहा कुछ भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, इट्स अ डिस्कवरी, तो आप उसे पेटेंट नहीं करा सकते। एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्री डिफाइंड है, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज तब तक मूव करेगी जब तक कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करता, या फिर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट एन इनपुट देयर कैन नॉट बी एन आउटपुट। ये सभी चीजें नेचुरल लॉज है और हम सब एक्सेप्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपने एक पेटेंट बनाया और आप कैसा कह रहे हो कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कोई भी इनपुट नहीं दो और कंटिन्यूसली आपको आउटपुट रिसीव होता रहेगा। लोग हंसेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, और गवर्नमेंट ऐसे आइडियाज को ग्रांट नहीं करेगी। सो एनीथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी, जो पॉसिबल नहीं है अगेंस्ट नेचुरल रूल्स, वो आपको गवर्नमेंट परमिट नहीं करती। एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स, आपकी कोई इन्वेंशन से इंसानों को, जानवरों को या पौधों को तकलीफ हो सकती है तो भी वो पेटेंट नहीं करा सकती। बट ऑन द कॉन्ट्ररी,
पेस्टिसाइड्स एक केमिकल है जो पेस्ट को मारती है बट इट हेल्प्स ह्यूमंस एंड प्लांट, तो इट कैन बी पेटेंटेड. सो जो चीज हमारे लिए हेल्पफुल है बट कीड़े मकोड़ों के लिए तकलीफ देती है, यू कैन स्टिल पेटेंट इट. आई नो, हिपोक्रेसी. ठीक है. mere discovery of a new form of known substance. Example, कार्बन, ग्राफाइट, डायमंड. हम सबको पता है कि ग्राफाइट और डायमंड जो है वो आइसोटोप है कार्बन के. सो दे आर डिस्कवरीज. वो फॉर्म बदलता है बट it is still a discovery. People are still finding it on the surface of earth. But कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, जहां पे कार्बन नैनो ट्यूब्स बनते हैं, we know it's an invention, किसी ने क्रिएट किया है, then that technology is patented. It's an invention. तो अभी आपको डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आया होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. mere अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस. ये समझना बहुत जरूरी है. समझिए, अगर कई बार आप पेटेंट किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो लोग कहेंगे दो अलग अलग प्रोडक्ट को मैंने मर्ज कर दिया, अब एक नया प्रोडक्ट बन गया, पेटेंटेबल हो गया. इट इज ट्रू, बट किस एक्सटेंट तक? जब भी आप दो प्रोडक्ट को मर्ज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो इंटरऑपरेटेबल हो, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो और दोनों को अलग करे तो फंक्शन ना हो सके. फॉर एग्जाम्पल, शूज, स्केट व्हील्स, मैंने दोनों को मर्ज किया, सॉरी शूज एंड व्हील्स, मैंने दोनों को मर्ज किया तो स्केट व्हील्स बने. अब मैं शूज को अलग कर दूं या व्हील्स को अलग कर दूं तो स्केट व्हील्स का फंक्शनिंग नहीं चलेगा. शूज के बगैर व्हील्स नहीं चल सकता, व्हील्स के बगैर शूज नहीं चल सकता, तो इट कैन नॉट वर्क टुगेदर. तो इट इज इंटरडिपेंडेंट. स्केट व्हील्स का फंक्शन दोनों के साथ में है. सो इट्स एन इन्वेंशन. बट आपने ऐसा बोला, अरे यार लाइट चली जाती है ना तो बहुत अंधेरा हो जाता है और टॉर्च ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ ना उस चेयर के साथ एक टॉर्च को चिपका देती हूँ सेलो टेप से. अरे ये तो नया इन्वेंशन हो गया. इट इज नॉट एन इन्वेंशन, क्योंकि अगर मैं टॉर्च को चेयर से अलग कर दूं तो भी दोनों का वर्किंग इंटैक्ट है और दोनों जो मेरा पर्पस था तब भी वो फुलफिल हो रहा था. ठीक है. ये सब मेरी आलस थी तो मैंने चिपका दिया, बट इट इज स्टिल डिफरेंट. अब मुझे अगर इंटरडिपेंडेंट करना है तो क्या करूंगी? मैंने टॉर्च को चेयर के साथ अटैच किया. जितनी बार पेटेंटेबल बना रही हूँ मैं प्रोडक्ट को, जितनी बार मैं चेयर पे बैठती हूँ या उठती हूँ तो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक चार्ज जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसको मैं बैटरी, जो टॉर्च की बैटरी है, उसको लाइट करने में हेल्प करूंगी. ठीक है, सॉरी चार्ज करने में हेल्प करूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो टॉर्च इतना स्मार्ट है कि इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड सडनली एवरीथिंग गोज डार्क, तो वो ग्लो करना शुरू करता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली द टॉर्च स्टार्ट्स टू ग्लो. वो आइडेंटिफाई करता है डार्कनेस एंड द पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर. सो इट्स अ स्मार्ट टेक्नोलॉजी. नाउ इट इज पेटेंटेबल. ठीक है. मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर. इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो अगर आपने सो करने के लिए, डिग करने के लिए कोई मेथड ढूंढा है तो वो आप पेटेंट नहीं करा सकते. बट अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है या कोई व्हीकल बनाया है जिससे वो प्रोसेस इजी हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई करता है, तो इट इज पेटेंटेबल. ठीक है. सिमिलरली मेडिसिन में भी इसी कंसेप्ट को गवर्नमेंट मानती है कि अगर आपने किसी को ट्रीट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए कोई मेथड ढूंढा है, क्योंकि इट्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट, इट सेव्स लाइफ, आप पेटेंट नहीं करा सकते. बट कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीनरी है, लाइक MRI, कैट स्कैन, तो आप उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं. ठीक है. इंडिया में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अगर आपके पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मुलेशन है या एल्गोरिदम है तो आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्योर मोबाइल एप्लीकेशन या एल्गोरिदम भी इंडिया में पेटेंट नहीं होती. बट देयर इज अ लूप होल. अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसकी वजह से कोई हार्डवेयर फंक्शन करता है तो आप उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम सब उस जनरेशन में है जहां पे हम सिर्फ IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं. हम सबको पता है IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्योर सॉफ्टवेयर. इट्स हम जो ब्रेन ऑफ द हार्डवेयर बोलते हैं, वो एक प्योर सॉफ्टवेयर है जो हमने उसके सर्किटरी में लिख के दिया है कि अच्छा ये आइडेंटिफाई कर रहा है तो तू ऐसा वर्क कर. पर ऑल्दो इट बीइंग अ सॉफ्टवेयर, हमने एक हार्डवेयर को फंक्शन किया. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फायर अलार्म है. ठीक है. अब फायर अलार्म को मैंने स्मार्ट किया मेरे एल्गोरिदम से. मैंने उसको बोला तू स्मोक या फायर डिटेक्ट करता है
तो तू अलार्म बजा, अपार्ट फ्रॉम दैट घर के जितने स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको चालू कर दे एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दे। तो मैंने एक फायर अलार्म को स्मार्ट किया यूजिंग माय एल्गोरिथम, देन द एंटायर कंसेप्ट इज पेटेंटेबल। तो मेरा एल्गोरिथम अगर कोई भी हार्डवेयर के साथ लिंक होता है तो मैं उसके अगेंस्ट पेटेंट फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इंडिया में बिजनेस आइडियाज पेटेंट नहीं होती। अगर आपके पास लाइक ऑनलाइन सेलिंग, फॉर एग्जांपल अमेजॉन जैसा कंसेप्ट है, जैसे अमेजॉन था इसलिए फ्लिपकार्ट आया, एयरबीएनबी था तो ओयो आया। इंडिया क्योंकि एक ग्रोइंग कंट्री है तो यहाँ पे बिजनेस आइडियाज को गवर्नमेंट पेटेंट नहीं करने देती, ठीक है। और कोई भी पेटेंट ऐसा है जहां पे आप ट्रेडिशनल नॉलेज यूज कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, योगा, तो भी आप ये चीजें पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज वर्ल्ड में 90% पेटेंट्स इंप्रूवमेंट पे फाइल होती है। दैट मींस एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको उसमें कुछ अलग दिखा, समथिंग इनोवेटिव, 1% आपको ऐसा लगा यार डिजाइन सही नहीं है, यार इसकी वर्किंग में थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, 1% अगर मुझे मॉडिफिकेशन दिखा तो मैं उस पर पेटेंट फाइल कर सकती हूँ। एंड पूरी वर्ल्ड में 90% पेटेंट्स 1% इंप्रूवमेंट पे चलती है, मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट उसमें अगर मैंने 1% इंप्रूवमेंट किया तो मैं पेटेंट फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स। पहले ग्रामोफोन एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद कैसेट प्लेयर्स आए, सीडी प्लेयर्स, वॉकमैन, आईपॉड, ये सभी इंस्ट्रूमेंट लोग यूजुअली म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट किसी ने सोचा होगा कि अगर मुझे रास्ते पे चलते चलते म्यूजिक सुनना है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं ग्रामोफोन उठा के रास्ते पे चलूं, तो किसी ना किसी ने वॉकमैन का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से आपके आजू बाजू वाली हर एक चीज इसी तरीके से इम्प्रोवाइज हुई है, बेटर हुई है और लोगों ने पेटेंट फाइल किया है। लाइक हम हमारे मोबाइल फोन्स की बात करें, पहले लैंडलाइन आते थे, 90s के बच्चों ने बहुत एंजॉय किए। आप लैंडलाइन से खड़े खड़े आपके फ्रेंड के साथ गॉसिप कर सकते हो, बट योर पेरेंट्स विल स्टिल बी अराउंड, तो आप ज्यादा गॉसिप नहीं कर पाओगे। फिर आएगा कॉर्डलेस फोन, एटलीस्ट यू कैन टेक द रिसीवर और आप दूसरे रूम में जाके बात कर सकते हो। स्टिल इट वाज नॉट कन्वीनियंट क्योंकि आप घर के बाहर तो नहीं जा पा रहे थे। फिर आया मोबाइल फोन्स का जनरेशन, राइट, जहाँ पे आई थिंक मेरा फर्स्ट फोन वाज नोकिया 3110, यू नो इट वाज नॉट अ स्मार्टफोन, इट वाज नॉर्मल फोन, डायल पैड वाला। उसके बाद आया जनरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके नहीं कर सकते, राइट। एंड आप सबके पास, एवरी पर्सन अटेंडिंग द सेशन, पॉसिबल है सबके पास अलग अलग फोन हो। 1% modification to the screen or to the camera or anything, 1% modification is more than enough to file for a patent, ठीक है। पेटेंट के बारे में बात करते हैं लोगों को ऐसा लगता है यार साइंटिस्ट होना पड़ेगा फाइल करने के लिए, कुछ बड़ी चीज होनी पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी चीजें पेटेंट होती है। लाइक इन द ईयर 2002 एक बंदे ने झूला झूलने के मेथड पे पेटेंट फाइल किया। उसने ऐसा बोला, यूजुअली हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 90 डिग्री एंगल में झूला झूलता है, बहुत बोरिंग है, लेट्स हैव अ स्विंग जिसमें हम 45 डिग्री पे एंगल पे झूला झूल सकते हैं, इट्स मच मोर फन। इट इज एन अप्रूव्ड डिजाइन ऑफ अ स्विंग, ठीक है। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे आप स्टेपलर पिन्स यूज करते हो, सेफ्टी पिन्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप जो भी यूज करते हो वो भी पेटेंटेड है। टूथब्रश, बेस्ट एग्जांपल, आई कैन एक्चुअली शो यू द डेटाबेसेस जहां पे टूथब्रशेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2 minutes, but toothbrushes, everything, every small thing that you touch from morning to the night time you sleep, everything is patented, ठीक है। अब हम समझेंगे एज अ कंपनी लोग किस तरीके से सोचते हैं और एक ही प्रोडक्ट पे यूटिलिटी और डिजाइन दोनों फाइल करते हैं। सी, अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू कैन इजीली फाइंड अ सोल्यूशन एंड फाइल अ पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम सब फोल्डेबल मोबाइल फोन्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, राइट, अ बेंडिंग फोन जो बेंड कर सकेगा। अब एप्पल ने ऐसा बोला कि जो बेंडेबल फोन है ना, उसकी जो स्क्रीन है, उसकी बॉडी है, उसके पेटेंट अलग अलग कंपनीज के पास है। लाइक फॉर एग्जांपल जो फोल्डेबल स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसका पेटेंट जो है वो एलजी कंपनी के पास है। सो व्हाट कैन वी डू टू बी इन द मार्केट एंड यू नो बी इन द रेस? तो एक बंदे ने ऐसा सजेस्ट किया, लेट्स मेक फोल्डेबल मोबाइल कवर्स। उसने ऐसा बोला, अगर एग्जिस्टिंग मोबाइल कवर हमने बेंडेबल फोन के साथ यूज किया, इट वोंट वर्क फ्लेक्सिबली। इमेजिन करो आपके प्लास्टिक कवर्स है और फोन बेंड होता है तो आपका प्लास्टिक बेंड नहीं होगा। एंड अगर आपने रबर कवर्स यूज किया, अगर आपने बेंड किया
तो वो साइड से बल्ज आउट होगा। इमेजिन करो आपके हाथ में लाखों का फोन है एंड अ बैड मोबाइल कवर, इंप्रेशन विल गो इनटू ड्रेन्स। सो इन्होंने ऐसा कवर डिजाइन किया जिसका मटेरियल इट्स सो फ्लेक्सिबल कि फोन कैसे भी बेंड हो वो बेंड होगा, एंड वो फोन को इतना गिरा पड़ा कुछ भी होगा, इट विल गिव इट द ड्यूरेबिलिटी टू सस्टेन द फॉल। तो उन्होंने एक सेल्फ एडजस्टिंग मोबाइल कवर विद ड्यूरेबिलिटी डिजाइन किया। वो मटेरियल जो मेकिंग है उस पे उन्होंने यूटिलिटी पेटेंट फाइल किया, और वही डिजाइन जब उन्होंने खुद के प्रोडक्ट पे इम्प्लाई किया, उन्होंने उनके एप्पल फोन्स के लिए वो कवर डिजाइन किया, तो उन्होंने इस पे डिजाइन पेटेंट अप्लाई किया। सो इट्स सो इजी। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, यू कैन फाइल टू थिंग्स, वन अ यूटिलिटी ऑन द आइडिया, कंसेप्ट, मेथड, वर्किंग, एंड अ डिजाइन पेटेंट ऑन जस्ट द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों के लिए मुझे प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग कैन बी ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक एप्पल फोन जो आप देखते हो उसमें 200 से ऊपर पेटेंट होती है। सी एप्पल इज नॉट जस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स अ ह्यूज ब्रांड, इट्स अ पॉपुलर ब्रांड, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज वो अपने पूरे प्रोडक्ट पे 100% नोवेल्टी लाती है, अलग अलग चीजों पे वो पेटेंट फाइल करती है। ठीक है, और क्योंकि पेटेंट की बात हो रही है, लोग बोलेंगे डिग्री नहीं है, उम्र नहीं हुई है। इंडिया का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर सिर्फ 9 साल का बच्चा है, हृदेश्वर भट्टी। ही सैडली हैंडीकैप्ड, ठीक है, और अभी ही इज ओनली राइट नाउ ही इज ओनली 13 or 14 years of age एंड स्टिल एन ओनर ऑफ 9 पेटेंट्स। उसके पास 9 पेटेंट है। इन जस्ट मिनिमम इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 years उसने 9 पेटेंट फाइल किए। सो एज क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, आपकी आइडिया को लेके समझ, जस्ट एन आइडिया कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पेटेंट्स, कुछ आइडियाज जो मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक अमेजॉन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने फाइल की है। आप उनके आइडियाज देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने भी सोचा था, बट इनके पास उसके पेटेंट्स है बिकॉज दे थॉट टू फाइल पेटेंट ऑन इट। जैसे अमेजॉन का एक बहुत इंटरेस्टिंग पेटेंट, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स बट आई विल बी टेकिंग इट क्विकली ताकि हम Q&A पे ज्यादा फोकस कर सके। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं जो डिस्कशन है वो शॉर्ट करूंगी ताकि हम ज्यादा Q&A एड्रेस कर सके। ठीक है, सो अमेजॉन के पास एक ऐसा पेटेंट है दैट इज कॉल्ड अ सर्च ड्रोन। वो क्या कहता है कि जहां पे बहुत लोग गैदर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुंभ मेला एग्जांपल लूं, लाखों के लोग आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई तो खो जाता है, and it is physically very difficult for a person to enter into the crowd and look for the person. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा ड्रोन है जिसमें मैंने इमेज को फीड कर दिया। The drone can hover over the entire crowd, और जैसे ही वो पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि इसका रडार ज्यादा बड़ा है than a person, जैसे ही वो पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा, it will stop